Good morning, dear students. Dear students, today in this lecture we will discuss exercise 6.3 question number 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th. These are the questions we will discuss in this lecture. So, let us consider question number 2nd. See the figure. In figure 6.40, angle x is equal to 62 degree, angle xyz is equal to 54 degree if YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ. Find angle OZY and angle YOZ. Dear students, in this क्वेश्चन में आपसे एंगल की वैल्यू पूछ रहा है. तो फर्स्ट वी ड्रा द फिगर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2nd. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ ट्रायंगल XYZ in which the bisector of angle y and z meet to each other at a point O. इसका बाइसेक्टर करेंगे ये. तो एक दूसरे से कहाँ मीट करते हैं? एंगल ये O आपका बनता है. और क्वेश्चन में ये एंगल x की वैल्यू आपकी है 62 डिग्री और इस एंगल की वैल्यू y की वैल्यू कितनी है? 54 डिग्री. इसका बाइसेक्टर किए. बाइसेक्टर करने का मतलब इसका हाफ करेंगे और जब इसका आप हाफ करोगे तो 54 डिग्री का हाफ कितना होगा? 27 डिग्री. इट मीन्स दिस एंगल रिप्रेजेंट 27 डिग्री. नाउ सी दिस फिगर. In this figure, XYZ represent a triangle and we know that the sum of all angle in a triangle is 180 degree. We know this theorem. We apply this theorem and find out the angle, this angle Z, and then we bisect this angle Z. This angle Z, when we bisect, we get the angle OZY. Is it clear? Now, how can we write this things on the paper? इन सारे थिंग को कैसे हम पेपर पर राइट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. जस्ट सी द फिगर एंड मूव नोन टू अननोन. क्या क्या हमें पता है पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए. इन द गिवन क्वेश्चन एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री एंड द एंगल y इज इक्वल टू 54 डिग्री इन ट्रायंगल XYZ. वी वांट टू फाइंड द एंगल z. द वैल्यू ऑफ एंगल z, हाउ कैन वी फाइंड? वी नो दैट एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये आपकी थ्योरम है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. एंगल angle sum property of triangle. Dear students, put the value of angle x and y here. The value of angle x is 62 degree and the value of angle y is 54 degree plus angle z is equal to 180 degree. 62 plus 54 degree, 4 plus 2 6, 6 plus 5 11, we get 116 plus
angle Z is equal to 180. Now the value of angle Z is equal to 180 minus 116 begets the value of angle Z is 10 minus 6 4 7 minus 1 6 1 minus 1 0 64. This is the value of angle Z in the triangle XYZ. इस ट्रायंगल XYZ में आपके Z की वैल्यू कितनी है 64. नाउ वी फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Y एंड एंगल Z. इसका बाइसेक्ट हमें निकालना है. बाइसेक्ट एंगल क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपका OY Z को रिप्रेजेंट करेगा, OZ Y को रिप्रेजेंट करेगा. नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल. नाउ एंगल OYZ is equal to 1/2 of angle Y and this value is 54 degree by 2. We get this angle is 27 degree. Is it clear? Now see here the value of angle Z is 64 degree. So the angle OZY is equal to half of angle Z and this value represents 64 degree by 2 is equal to 32 degree. 32 degree. Now we want to find the value of angle O. We want to find the value of angle O. This is our task. How can we find value of angle YOZ? YOZ कैसे हमें मिलेगा? अब ये देखिए आप, ये एक आपका ट्रायंगल है OYZ. OYZ क्या है? एक ट्रायंगल है ना. तो OYZ आपका एक ट्रायंगल है. तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो होती है उसको भी ये भी सेटिस्फाई करेगा. और आपको पता क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसे हमें ऑलरेडी पता है ना. नाउ in triangle OYZ, angle YOZ plus angle OZY plus angle OYZ is equal to 180 डिग्री. यही प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर भी इंक्लूड हो जाएगी. एंगल YOZ प्लस एंगल इसकी वैल्यू आपको OZ Y कितना है 32. OYZ कितना है 27. Put this value here. Add these two values. We get YOZ plus 2 plus 7 9. 2 plus 3 5 is equal to 180 degree. Now angle YOZ is equal to 180 minus 69 degree. Write the value of this angle in your comment section. लिख दिए. देखिए कितना है 10 minus 9 1 7 minus 5 2 121 डिग्री. सबका आया है कि नहीं आया है?
मिलाइए अपना, अगर नहीं आया फिर से लगाइए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सी द क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 6.41 इफ ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी पैरेलल टू डी ई, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू 35 डिग्री, बी ए ई इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53 डिग्री, सी डी ई इज इक्वल टू 53 डिग्री। नाउ फाइंड एंगल डी सी ई इज इक्वल टू व्हाट। इस एंगल की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हाउ कैन बी सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम? डियर स्टूडेंट्स, वी मूव नोन टू अननोन। वी नो दैट ए बी पैरेलल टू डी, दिस इज गिवन इन आवर क्वेश्चन। इफ इट इज पैरेलल टू ईच अदर देन ए क्या करेगा? ए इज अ ट्रांसवर्सल, ए इज अ ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। सो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इट मीन्स सो एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 35 डिग्री। Why? Because these are alternate angle, means pair of alternate angles. Now in triangle CDE, अब आपके पास जो ट्रायंगल CDE है, CDE ये देखिए ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में इस एंगल की वैल्यू, ई की वैल्यू आपको क्या मिल गया? 35 डिग्री। और इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको इस एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन ट्रायंगल CDE एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E is equal to 180 degree. Y angle some property of triangle। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने आपको डिफाइन किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये आपकी वैल्यू डिफाइन हो गई। एंगल C प्लस एंगल D 53 डिग्री, एंगल E 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एट दिस टू एंगल 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 5 8, 88 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। Now find the value of angle C. Angle C is equal to 180 minus 88 degree. Write the value of this angle C in your comment section. The value of this angle is what? You should write the value of this angle in comment section. Is it clear? Now, dear students, let us consider question number 4. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड किए। इन 3 एंगल्स का सम 180 होगा। इन दोनों को ऐड करके इधर जो है ट्रांसपोज कर देंगे तो एंगल C की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। खासकर ये लाइन एंड एंगल्स का चैप्टर आपका है, इसमें फिगर अगर आपने ड्रा कर लिया तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, सी इन फिगर 6.42 इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T सच दैट एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री
एंगल RPT इज इक्वल टू 95 डिग्री एंड एंगल TSQ इज इक्वल टू 75 डिग्री। फाइंड एंगल SQT। SQT की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो SQT की वैल्यू हम यहाँ पर डिफाइन करनी है। पहले हम फिगर ड्रा करते हैं। दिस इज द लाइन RTS। now here point P, we join this, construct this is a triangle RPT and SQT. these are the two triangles here. now कितने इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर गिवन है। इसकी वैल्यू आपकी कितनी है 95 डिग्री, इसकी 40 डिग्री, इसकी आपकी 75 डिग्री है। और क्वेश्चन में आपसे किस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, एंगल SQT। ये आपका सी हियर, फिगर से ये वैल्यू अगर डिफाइन करेंगे, इसकी क्या वैल्यू होगी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यहां पर अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल PRT, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको प्रॉपर्टी पता है, इसे आप यहाँ पर लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखना है। अब इसमें एंगल P की वैल्यू 95 डिग्री, एंगल R 40 डिग्री प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 5 प्लस 0 5, 9 प्लस 4 13, 135 डिग्री प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वैल्यू डिफाइन हो जाती है। नाउ एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। द वैल्यू ऑफ एंगल T इज इक्वल टू 0 माइनस 5 मीन्स 10 माइनस 5, 5, 7 माइनस 3, 4, 1 माइनस 1, 0, 45 डिग्री। दिस एंगल इज 45 डिग्री। नाउ we know that if two lines intersect each other at a point, then the vertically opposite angles are equal. vertically opposite angles क्या होते हैं, ये आपके इक्वल होते हैं ना। see here this angle PTR and angle STQ represent vertically opposite angle, so these two angles are equal to each other. So these two angles are equal to each other. Now by figure, angle PTR is equal to angle STQ. Why? Vertically opposite angles. ये आपके vertically opposite angles हैं. Is it clear? Now putting this the value of angle T here, we get angle STQ is equal to 45 degree. Now in triangle STQ, the sum of these three angles is equal to 180 degree. Angle S plus angle T plus angle Q is equal to 180 degree. Now putting the value of angle ST and from this equation, and it is given in the question, so we get 75 plus 45 degree plus
angle Q is equal to 180 degree. The sum of these two angle is 5 plus 5 0, carry value 1, 8 plus 4 12, 120 degree plus angle Q is equal to 180 degree. Now the value of angle Q is equal to 180 minus 120. Write the value of angle Q in your comment section. The value of this angle is 60 डिग्री. 180 में से 120 माइनस करो, कितना आएगा? 60 आएगा. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. इस एंगल की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 45 डिग्री. ये दोनों एंगल इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं. ये भी 45 डिग्री हो गया. 45 प्लस 75 ऐड कर लिए. दोनों को ऐड करने पर कितना आया आपका? 5 प्लस 5 0 और 5 प्लस 4 11 प्लस 1 120 और 120 180 में से सब्ट्रैक्ट किए तो ये इस एंगल की वैल्यू डिफाइन हो जा रही है ना. और इसी एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है, क्योंकि हमें रिटर्न करना है. रिटर्न करने में इतनी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिखा है. अदरवाइज ये आपका देखने के साथ लगने वाला क्वेश्चन है. सी दिस क्वेश्चन एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन. इज इट क्लियर? नाउ लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर 5. Dear students, see the question number 5. In question number 5, in figure 6.43, in figure 6.43, if PQ is perpendicular to PS, PQ parallel to SR, angle SQR is equal to 28 degree and angle QRT is equal to 65 degree. Find the values of angle X and Y. X और Y एंगल की वैल्यू आपसे यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए कह रहा. फर्स्ट वी ड्रा द फिगर. You should also draw the figure in your rough copy. Dear students, see here. This is the given figure in which PQ perpendicular to PS. This is line segment PS and PQ is perpendicular to PS. Now this line is extend to the point T, a point R on this line ST. Join this point R to Q. We get this is the angle QRT is 65 degree. It is given in our question. And when we join this point Q to S, we get the angle of this is 28 degree. Now find the value of angle X and angle Y. एंगल X और एंगल Y की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है. हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? डियर स्टूडेंट्स, सी हियर. द गिवन वैल्यू इज PQ is parallel to SR. PQ is perpendicular to PS. PQ किसके पैरेलल है? SR के. और PQ परपेंडिकुलर किसके हैं? PS के. क्वेश्चन में गिवन है. कुछ वैल्यूज भी आपको डिफाइन किया है. इसकी वैल्यू यहाँ पर डिफाइन किया है. एंगल SQR is equal to 28 degree and angle QRT is equal to 65 degree. Now find the value of angle X and Y. X और Y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. ये इंफॉर्मेशन है. Now see here,
पी क्यू पैरेलल टू एस आर, सो पी क्यू पैरेलल टू एस आर, सो क्यू आर is a transversal line. QR is a transversal line. PQ parallel to SR. So RQ or QR is a transversal. So alternate angles are equal. ये जहाँ पर आपको Z ऐसा एंगल मिले, Z बन गया, समझ लीजिए कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये देखिए Z बना ना यहाँ पर, तो ये एंगल क्या होगा, x + 28 इज इक्वल टू 65 डिग्री, ये आपका हो जाएगा। सो एंगल s + 28 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री, या इसी को ऐसे अगर लिखते पहले पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी वाई, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। ये आपकी pair of alternate angles. Now transpose this value from left to right side. Angle x is equal to 65 minus 28 degree. 65 minus 28. Write this value in your comment section. 15 minus 8 7 5 minus 2 3 37 डिग्री। आपका भी 37 डिग्री आया है? Now we want to find this angle. See this figure. In figure QPS, QPS is a right angled triangle. QPS is a right angled triangle. Now write this value here by figure. Triangle QPS is a right angled triangle. So angle x plus angle y plus एंगल P की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री. एंगल x, द वैल्यू ऑफ एंगल x इज 37 डिग्री. द वैल्यू ऑफ एंगल y फाइंड आउट ही करना है. एंगल P की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री. नाउ द वैल्यू ऑफ एंगल y इज व्हाट? 90 प्लस 37. 90 प्लस 37 कितना होगा? 90 प्लस 37, 7 प्लस 0 7, 9 प्लस 3 12, 127 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 127. वी हैव टू गेट दिस वैल्यू 53 डिग्री. The value of this angle is 53 degree. Is it clear? तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे लगे. डियर स्टूडेंट्स, सी ये अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे तो आपको इतनी
लिखने की ज़रूरत है नहीं, डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव में आपने क्या किया, इन दोनों एंगल का सम इस एंगल के इक्वल है, इसके इक्वल करके इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। x प्लस वाई प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री। x की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट किया यहाँ रख दो, रखने के बाद इसकी वैल्यू आपको निकल जाएगी, और इसकी वैल्यू ये आपको ऑप्शन में अगर दिया है तो उसको y की वैल्यू 53 हो जाएगी और x की वैल्यू 37 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन जो भी रहेगा वो आपका ट्रू हो जाएगा। इज इट क्लियर?